Chairperson and members of the House. So today is the third day of the FDP that we are conducting from the IQAC Sunbeam Women's College, Varuna. And today we have a very special guest. The best way to describe him would be just two words: knowledge personified. But since I have been given the responsibility of reading the profile, I am doing this audacity to read the profile of such a human being whose vision in life is to groom himself as a professional of high academic and administrative repute in the field of teacher education and research. So we have Professor Sunil Kumar Singh amongst us today from the Faculty of Education, BHU. A few of the highlights in his career. First of all, he shares a 27 years of teaching experience at UG, PG and PhD level, something truly remarkable. Apart from that, Sir has around 80 different articles published in various journals of national and international repute. He has presented his deliberations in more than 70 seminars and conferences. He had published 18 books, 22 chapters in books, and numerous proceedings of conferences, etc. Sir has worked as a coordinator of IGNOU Study Center for 6 years, been an administrative warden for 6 years, student advisor for 1 year, convener of various faculty programs, OSD in school for 1 year, vice chairperson of school board BHU for 4 months, nominee chairman KB BHU, convener IOE Teach for BHU program for 2 years. These are some of the hallmark features that he has covered. He has developed 6 different courses in the field of educational ethics, environmental education, philosophical foundations of education, school internship program, so on and so forth. Sir has supervised a total of 16 PhD theses, excluding 2 PDFs which he also has mentored in the field of ICSSR PDF programs. Apart from these, some of the awards and accolades that Sir has been awarded with are he has always been good in studies, but I see the gold medals and BHU medal both at UG and PG level. He had also been the best NCC cadet naval in UP of his time. So that shows the transdisciplinary or multidisciplinary nature again. Apart from, he is the first D.Lit in the education faculty BHU once again. So I don't think I should waste much more time. It was a 75-page profile and it was really a difficult job for me to scale it down to 1 page. But still, I managed my bit. So if I have missed something, I seek your pardon, sir. So stage is all yours. I would request Principal Sir and Administrator Ma'am to kindly felicitate sir for today's program. It is really a pleasure to visit any good institution. And any institution is good because of good people. So the ambience of Sunbeam Women's College is obviously good. It is all because of you. Although you might be expecting too much from me, looking at my CV, but it is not one day affair, it is a constant affair. It goes on, and maybe it is all because of my teachers, my parents, my friends. Because of all of them, I might have achieved something. But something is not enough. Our ultimate motive of doing anything is to achieve peace. Om Shanti Shanti Shanti. मूल रूप से जो आज का विषय है उसमें तकनीकी दक्षता की जरूरत है, लेकिन तकनीकी दक्षता मूलतः मशीनों पर निर्भर होती है और उस मशीन के पीछे जो काम करने वाला व्यक्ति है उसको दक्ष होना जरूरी है।
So skilling yourself is very important. And ultimately, skilling is not dependent on skills, on machines. Skilling yourself is basically dependent on your own will to skill yourself. So we must start from some point and we must proceed as per the norms of the day, norms of the times, and the vision of the profession in which we are working. So I will simply tell you about some of the basics of development of e-content. Although due to advent of artificial intelligence in particular, there are a lot many changes, unexpected changes. You can create a content with the help of some of the programs and softwares which are available with you, and you can create them within no time. Means you think, take hardly 5 minutes and you can create a content. Maybe you might have been oriented towards this. There are several programs like Gamma or something like that. I am not expertise in that particular area, but yes, a little I have worked on development of e-content. Because any content from any software, when you are using, developing and disseminating, then basics have to be taken care. So I will talk about that, which can be useful for everyone and for all times to come, wherever either you are using AI or you are not using AI or you are using any other thing. So basic first thing I like to tell you that ultimately e-content is basically any subject content produced in electronic form. And traditionally, if you look, there were 4 revolutions in the field of education. Initially, in traditional ways, we know that print was the basic means, and we were using print in our day-to-day life. But ultimately, the times changed. And when you reach the 4th revolution in education, after coming of several machines, etc., e-revolution is the greatest revolution. And in the era of e-revolution, the greatest thing is that any individual is exposed to the content he or she wants at the moment or at the will in which he or she wants. तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि हर आदमी जो चाहता है, अगर उसको तुरंत वही चीज मिल जाए तो वो उसके लिए बहुत एक खुश होने का जो है मार्ग प्रशस्त करता है, या हम ये कह सकते हैं कि हमारी रुचि उस दिशा में बढ़ जाती है। और इसलिए जैसे आप ये देखें कि पूरी दुनिया में आप देखेंगे कि 1970s ऑनवर्ड्स बहुत सारे मूवमेंट्स हुए, जिसमें कि डिस्टेंस एजुकेशन, ओपन एजुकेशन, ये सारी चीजें पूरी दुनिया में हैं। पर्टिकुलरली हम ये देखते हैं कि भारत में इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के एस्टेब्लिश होने के बाद 1986 के बाद 1987 में जब डिस्टेंस एजुकेशन में एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि एक मील के पत्थर के रूप में इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी ने काम करना शुरू किया, तो यहाँ पे प्रिंट मटेरियल का डेवलपमेंट सबसे पहले हुआ। और वो जो प्रिंट मटेरियल था, इट वाज ए क्वालिटी मटेरियल। क्वालिटी मटेरियल इसलिए भी था कि उसको किसी एक व्यक्ति ने तैयार नहीं किया था, वो मटेरियल एक टीम ऑफ एक्सपर्ट्स के द्वारा तैयार किया गया था। और आज भी अगर 1980s में जो डेवलप्ड मटेरियल है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी का, अगर आपने उसको देखा होगा या अगर आप देखें तो इट इज क्वालिटी मटेरियल व्हिच इज फीडिंग द सब्सिक्वेंट मटेरियल्स टिल नाउ। और पूरे देश में अन्य जो ओपन यूनिवर्सिटीज हैं उस कह सकते हैं कि उस हॉलमार्क को अचीव नहीं कर पाए, और वो इसलिए हो पाया क्योंकि जो टीम ऑफ एक्सपर्ट्स थे वो अपने एरिया के नॉलेजेबल लोग, दे वर प्रैक्टिशनर्स इन देयर ओन एरिया।
तो कॉरेस्पॉन्डेंस में प्रिंट मटेरियल का यूज होता था। बाद के वर्षों में अगर आप ये देखें कि इन यूनिवर्सिटीज ने क्या किया, इस मटेरियल को ओपन मोड में, इलेक्ट्रॉनिक मोड में ले लिया और अपने पार्टिसिपेंट्स को या अपने स्टूडेंट्स को ओपन मोड में उसको अवेलेबल करा दिया, जिससे कि कोई भी, क्योंकि जो ओपन एंड डिस्टेंस सिस्टम ऑफ एजुकेशन था उसकी ब्यूटी यही थी कि कोई भी व्यक्ति अपनी सुविधा के साथ जब पढ़ना चाहता है तब उसको पढ़ सकता है, irrespective of the time, place and his own or her own constraints. So different types of constraints were ultimately neutralized by the coming of the e-materials, coming of the correspondence materials in the beginning and later on e-materials in the later phases. अब आप ये देखते हैं कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ, उस डेवलपमेंट के साथ हमें देखते हैं कि टीचर्स के सामने बहुत सारे चैलेंजेस भी आए, एंड पर्टिकुलरली जब इंटरनेट पे कंटेंट की अवेलेबिलिटी हो गई, या हम ये कह सकते हैं कि ओवरफ्लो हो गया। तो ओवरफ्लो होने के बाद सबसे बड़ा चैलेंज आ गया कि विच इज द ऑथेंटिक मटेरियल। आज आप ये देखते हैं कि क्लासरूम्स में हम जाते हैं तो बच्चे से पूछते हैं कहाँ से पढ़ा, तो वो कहता है हमने गूगल से पढ़ा। उसका एक ही रिप्लाई होता है, एंड फ्रॉम स्कूल to university level the answer is same. Nobody wants to visit libraries, nobody wants to look at the books and nobody wants to look at the authentic books. लेकिन इसके साथ साथ एक पैरेलल रिवॉल्यूशन भी हुआ है, जैसे बहुत सारी बुक्स जो ट्रेडिशनली प्रिंट मोड में थी उनको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया गया है, और वो भी आप ये देखते हैं कि ओपन एक्सेस में अवेलेबल है। Although it is quite tough to read those materials because you also play with your health when you do it. लेकिन समय की आवश्यकता को देखते हुए, हर व्यक्ति की सुविधा को देखते हुए ये जरूरी है कि हम ई मटेरियल्स डेवलप करना सीखें और ई मटेरियल्स को हम अवेलेबल कराएं। क्यों? क्योंकि अगर आप मार्केट फोर्सेस को देखेंगे और लोगों की जरूरतों को देखेंगे, उसके संदर्भ में यदि आप मार्केट फोर्सेस और लोगों के जरूरतों के हिसाब से काम नहीं करेंगे तो आप आउटडेट हो जाएंगे, नोबडी विल आस्क फॉर यू। तो इसलिए जरूरी है कि ई कंटेंट डेवलप करना और ऑथेंटिक वे में डेवलप करना, ये बहुत जरूरी है। तो इलेक्ट्रॉनिक कंटेंट का आगमन इस तरह से कुछ हुआ, नीड ऑफ ई कंटेंट, ये चीजें जो हमने कही, information access and learning has become more individualized. जैसे आप ये देखते हैं कि नॉलेज, या जिसे हम ज्ञान कहते हैं, सामान्यतः नॉलेज या ज्ञान सामान्य शब्दों में हम किसे कहते हैं? क्या सूचना ही ज्ञान है? क्या सूचना भी ज्ञान है? क्या बिना सूचना के ज्ञान तक नहीं पहुंचा जा सकता है? अगर हम प्रारंभिक तौर पे ये देखें कि सही सूचना ही ज्ञान का मूल आधार है, फिर यहां ऑथेंटिसिटी की बात आ गई। ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड नॉलेज कैन नॉट बी डेवलप्ड इन ग्रुप। नॉलेज इज अल्टीमेटली an individual affair, and it is generated and reflected in different forms through different sources, और उसका एक सोर्स जो है वो इलेक्ट्रॉनिक सोर्स है। इसमें आप ये देखें कि ये जो पूरा रिवॉल्यूशन हुआ, इसमें फिर जैसे इसके पहले लोग ये कहते थे कि हम समूहों में पढ़ें, समूहों में बढ़ें, समूह के लिए ही सारी चीजें करें, लेकिन अगर आप करीब 10 शताब्दी पहले जाएंगे या हजारों वर्ष पहले जाएंगे या फ्यूचरिस्टिक नॉलेज को भी देखेंगे, तो ये पाएंगे आपकी बेस्ट नॉलेज वाज डेवलप्ड विद द पीपल हु वर्कड इंडिविजुअली, हु अचीव्ड इंडिविजुअली। तो ऐसे में आज के दौर में भी ये बात स्पष्ट रूप से ये हो गई है कि हर व्यक्ति वही पढ़ेगा, वही बनेगा जो वो चाहता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कंटेंट
या कोई भी हम रीडिंग मटेरियल जब उपलब्ध कराते हैं तो उसका एक पर्पस ये होना चाहिए कि जो लर्नर उस तक पहुंचना चाहता है उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति उसके द्वारा हो जाए. He or she should be able to reach the material he or she wants to read, and this material should be authentic material. So this is the basic need. Learning has become more individualized. That's why e-material is required. Then individualization requires simplification of the content. जैसे आप ये देखें कि बहुत सारी किताबें हैं. आज मैंने विद्यार्थी से पूछा कि जो कल टास्क दिया था आप पढ़ के आए हो, तो आपको 50% का तो आंसर ये मिलेगा कि नहीं पढ़ के आए. लेकिन एक स्टूडेंट पढ़ के आया तो मैंने उससे पूछा कि क्या पढ़ा, तो उसने बताया सर मैंने ये बुक पढ़ी. तो मैंने कहा कि क्या समझा, बोला कि सर एक बार पढ़ के मैं समझ नहीं पाया. जैसे बुक तो लिखी गई है, इट इज अवेलेबल विद हिम, लेकिन एक बार पढ़ करके वो उसको समझ नहीं पाया. तो ई कंटेंट डेवलप करने में हम अगर लर्नर फैसिलिटेशन को ध्यान में रखें कि व्हाट इज द नीड ऑफ द लर्नर, और उसके हिसाब से अगर हम सिंपल वर्ड्स, सिंपल सेंटेंसेस, सिंपल वेज ऑफ रिफ्लेक्शन अगर इसको हम ध्यान में रखें तो दिस मटेरियल विल बी मोर पॉपुलर मटेरियल, मोर यूजफुल मटेरियल, मोर एक्सेसिबल एंड मोर रिट्रीवेबल मटेरियल. तो इसलिए इसमें सिंप्लीफिकेशन ऑफ द कंटेंट, जो विषय वस्तु है उसका सरलीकरण बहुत जरूरी है, सो दैट इट लीड्स टू इजी कॉम्प्रिहेंसिबिलिटी, आसानी से उसको समझ जाए इन द वे द लर्नर वांट्स टू एक्सेस इट, जिस रूप में वो उसको देखना चाहता है उस हिसाब से वो कर ले. Then it requires being in the self instructional form. यहाँ से चीज थोड़ी सी शुरू होती है कि ये कैसा होना चाहिए, सेल्फ इंस्ट्रक्शनल होना चाहिए. मैं इसको क्यों पढ़ना चाह रहा हूँ, मेरा लक्ष्य क्या है पढ़ने का, उससे मेरे फायदे क्या होंगे, ये शुरू में ही जो आप इंट्रोडक्शन पार्ट देते हैं उसमें उसकी एक्सेसिबिलिटी. तो ये सेल्फ इंस्ट्रक्शनल, क्योंकि जो भी मटेरियल्स हिस्टोरिकली डेवलप हुए सेल्फ इंस्ट्रक्शनल मोड में ये सारे के सारे मटेरियल्स ये थे. नाउ कमिंग टू द कोर पार्ट, सेल्फ इंस्ट्रक्शनल फॉर्म ऑफ कंटेंट राइटिंग. जो भी मटेरियल डेवलप करें तो सेल्फ इंस्ट्रक्शनल फॉर्म में हमको क्या ध्यान में रखना है. सबसे पहले हमारा टारगेट लर्नर कौन है. ये अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट हो सकता है, पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट हो सकता है, इवन स्कूल स्टूडेंट हो सकता है. तो जो लेवल ऑफ स्टूडेंट है उसकी समझ हमको होनी चाहिए. लेवल ऑफ स्टूडेंट से तात्पर्य क्या है, जिस तरह की क्लासेस हमारी हैं वो बहुत ही डाइवर्स क्लासेस हैं, और डाइवर्स क्लासेस के तो चैलेंजेस बहुत ही अनइमेजिनेबल चैलेंजेस. लेकिन फिर भी अगर आप एक ग्रुप को ध्यान में रख करके और अपनी प्लानिंग को आगे बढ़ाएंगे तो शायद वो ज्यादा यूजफुल हो सकता है. सो टारगेट लर्नर्स हैज टू बी इन योर माइंड एंड शुड बी पॉइंट ऑफ फोकस whenever you are starting this venture. Then content identification. You should clarify what type of content you want to give. अपने विषय में जो आपका पर्टिकुलर एरिया हो, आपका एक्सपर्टाइज एरिया हो, या जो आपकी टीम का एरिया हो, पर्टिकुलर लर्नर की जो रिक्वायरमेंट हो, उसके कॉन्टेक्स्ट में कंटेंट को इस तरीके से आप पहले ही आइडेंटिफाई कर लें कि मैं इसी दिशा में इस मटेरियल को डेवलप करने जा रहा हूँ. इसमें देन नीड स्पेसिफिकेशन. अब ये तीनों इंटर रिलेटेड है. Why I am developing a particular content? Is it practically needed for my target group or not? And it is needed for me or not? जैसे मैं भी अगर करने जा रहा हूँ तो मेरा भी तो कुछ फायदा उसमें होना चाहिए. I should be able to grow professionally. I should be able to contribute professionally. तो इस तरह से इन तीनों को आपको कोरिलेट करके और डिसाइड करना है. Then set objectives. Set objectives for whom? Set objectives
particular for this task. क्यों आप ये करना चाह रहे हैं? और ये ऑब्जेक्टिव्स वही टारगेट ग्रुप्स के आधार पे और कंटेंट के आधार पे और नीड के आधार पे ही तय किए जाएं. There are certain ways of writing these objectives. They should be ultimately individualized. They should look like as if it has been written for the particular learner. जैसे जो भी पढ़े उसको लगे ये मेरे लिए ही लिखा गया है. अगर इस तरह से हम ऑब्जेक्टिव्स को सेट करते हैं तो वो ऑब्जेक्टिव्स ज्यादा बिफिटिंग हो सकते हैं. एंड देन यूनिट प्लानिंग. अब यहाँ पे सेट ऑब्जेक्टिव में एक बात और भी ध्यान में हमको रखनी है. व्हाट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ माय मॉड्यूल और माय लर्निंग मटेरियल एंड what should be the objective of writing that particular content after which the learner will be benefited. तो ये चीजें आप तय करने के बाद ही यूनिट प्लानिंग में जाएं. यूनिट प्लानिंग मींस जैसे मान लीजिए हमारा मॉड्यूल कितने यूनिट्स में डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए so that the identified content is accommodated well for the particular level. जिस लेवल के लिए भी आप काम कर रहे हैं वो उसको एकोमोडेट कर पा रहा है. इट कैन बी इन 2 यूनिट्स, इट कैन बी इन 3 यूनिट्स, इट कैन बी इन 4 यूनिट्स एज यू लाइक. इट डिपेंड्स ऑन यू एंड नीड ऑफ द कंटेंट एंड प्रेजेंटेबिलिटी. तो यूनिट प्लानिंग आप उसके हिसाब से कर सकते हैं. इवन यू कैन डिसाइड approximate number of pages to which it will contribute. It may be in 100 pages, it may be in 80 pages, it may be in 150 pages. But if you are writing in form of a module, it is better if it is in not too much pages. जैसे आप ये देखें कि एक सामान्य प्रवृत्ति होती है आदमी की कि कम पेजेस रहते हैं तो फास्ट पढ़ना चाहता है और पढ़ने के बाद ही फील सेटिस्फाइड. तो जब भी मॉड्यूलर फॉर्म में आप लिखते हैं तो ये देखें कि इट शुड नॉट एक्सीड मच. अगर 80 to 100 या 125 पेजेस हो तो इट इज अ कंफर्टेबल जोन. तो ये भी आपको प्लानिंग के समय देख लेना चाहिए हाउ यू कैन प्रोसीड. देन यूनिट ऑब्लिक लेसन आइडेंटिफिकेशन. जैसे आपने यूनिट प्लानिंग तो कर लिया लेकिन एक यूनिट जो है वो डिफरेंट लेसन्स में भी डिस्ट्रीब्यूट हो सकती है. उसको आप ये कह सकते हैं कि एक यूनिट में 2 लेसन्स भी हो सकते हैं. इवन आप ये भी कर सकते हैं कि अगर आप यूनिट फॉर्म में नहीं लेसन फॉर्म में रखना चाहते हैं देन यू कैन राइट इन लेसन फॉर्म आल्सो. लेसन 1 2 3 4 लाइक दैट. व्हाट आर द बेसिक्स टू बी टेकन केयर व्हाइल राइटिंग ए लेसन. क्योंकि जब यूनिट फॉर्म में लिखते हैं या लेसन फॉर्म में तो हम ये सारे स्टेप्स सब में ध्यान में रखते हैं. सबसे पहले तो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव. जो हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव्स पहले बात किया था वो क्या था? द ऑब्जेक्टिव ऑफ राइटिंग दिस मॉड्यूल. व्हाट इज माय ऑब्जेक्टिव ऑफ राइटिंग दिस मॉड्यूल. यहां पे क्या है? व्हाट इज माय ऑब्जेक्टिव ऑफ राइटिंग दिस लेसन. तो ये ऑब्जेक्टिव जो है क्रिस्टल क्लियर 3 4 5 पॉइंट्स में वहां लिखा जा सकता है. It should be in the form of learning outcomes. जैसे आप ये देखें कि ये वर्ड जो है पिछले 1 दशक से ज्यादा पॉपुलर है, लर्निंग आउटकम्स. तो लर्निंग आउटकम इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स और लर्निंग आउटकम्स में कोई रिलेशन है क्या? There can be no learning outcome without instructional clarity of instructional objectives. या जिसको आप कहते हैं अनुदेशनात्मक उद्देश्य. Whatever you are going to teach, whatever you are going to transact, that should be having some objectives. And learning outcome is basically reflected in the behavior of the student. कि पढ़ने के बाद उसमें कुछ अंतर आ रहा है कि नहीं. आम तौर पे जो हालात हैं उन हालातों में ये देखने में आ रहा है कि बच्चे को लर्निंग आउटकम्स में एक सेंटेंस लिखना टफ हो रहा है. He has a good objective knowledge, but while writing the subjective knowledge in form of a sentence, many are unable to write correct words or correct sentences, even paragraphs.
ये मतलब कि आम लर्नर में ये प्रॉब्लम्स धीरे धीरे देखने में आ रही हैं और या बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, और इसलिए भी आ रही हैं कि ये लर्नर्स का ग्रुप डाइवर्स हो गया है, जो इनकी नेचर ऑफ लर्निंग है वो बदल गई है, द फॉर्म्स ऑफ रिफ्लेक्शन हैव चेंज्ड। तो यहाँ पे लर्निंग आउटकम्स हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कुछ हमको स्पेसिफाई यहाँ कर लेना चाहिए। देन introduction about a small introduction about the particular lesson you are going to write, as to what will be the basic content in this particular lesson or particular unit. It should be in a very very brief form and should be in the simple words. Then main body will involve these things. Main body में particularly आप ये देखें what will be the components of the main body. जैसे जो भी आपने इंट्रोडक्शन लिया है, लर्निंग आउटकम्स लिया है, वो सारा उसमें ये कंपोनेंट्स, सब कंपोनेंट्स और एलिमेंट्स नजर आने चाहिए। इसमें हम ये कह सकते हैं कि सरल तरीके से देखें व्हाट विल बी द टीचिंग पॉइंट्स यू वांट टू टॉक अबाउट, और उन टीचिंग पॉइंट्स के लिए हमको क्या करना होता है, टास्क एनालिसिस एक करना होता है। टास्क एनालिसिस इज ए प्रोसेस in which the basic content is divided into components, sub-components and elements. तो उसमें आप इंडिविजुअली या ग्रुप्स में जैसे भी आपको कंफर्टेबल हो उस हिसाब से आप टास्क एनालिसिस करके ये डिसाइड कर सकते हैं कि किस लेसन में कौन से टीचिंग पॉइंट्स हम किस रूप में एकोमोडेट करना चाह रहे हैं। दिस इज अ सिंपल वे। देन the module should, after the main body there should be the self activities. क्योंकि self instructional mode में ये सारी राइटिंग की जाती है, तो self instructional mode के लिए ये जरूरी है कि पढ़ने के बाद कुछ एक्टिविटीज भी आप दे दें। बहुत ज्यादा एक्टिविटीज आप देंगे तो इट विल बी डेविएटिंग। एक या दो कोई एक्टिविटीज आप उसमें से आइडेंटिफाई करके दे दें और स्टूडेंट उसको आसानी से गिवन प्लेस में वहीं पे लिख ले या अपने आप एक्सरसाइज कर ले, बट इट शुड बी एकोमोडेटेड आफ्टर एवरी बेसिक कंपोनेंट। अगर हर एलिमेंट के बाद आप देने की स्थिति में हैं तो कुछ सिंगल क्वेश्चन यू कैन गिव, बट इफ यू आर नॉट एबल टू गिव आफ्टर एवरी एलिमेंट ऑफ योर कंटेंट, देन एटलीस्ट यू शुड एंश्योर दैट आफ्टर एवरी बेसिक कंपोनेंट देयर शुड बी अ बॉक्स फॉर सेल्फ एक्टिविटीज। इन सेल्फ एक्टिविटीज के बाद समरी भी आपको देनी चाहिए। अब जैसे आपने देखा कि एक टीचिंग पॉइंट हमने लिया, उस टीचिंग पॉइंट के लिए एक सेल्फ एक्टिविटी ले ली और सेल्फ एक्टिविटी के बाद फिर हमको एक बॉक्स में या किसी रूप में एक समरी भी देनी चाहिए, और उस समरी में हम एक ब्रीफ कर सकते हैं कि हाउ यू हैव accommodated different concepts in this particular content, मॉड्यूल। तो ये आपको जो है समरी में आना चाहिए। समरी के बाद देन यू शुड इंक्लूड सेल्फ चेक एक्सरसाइजेस। अब देखिए सेल्फ एक्टिविटी और सेल्फ चेक एक्सरसाइजेस में थोड़ा सा डिफरेंट है। अब सेल्फ एक्टिविटी जैसे आप इसको रिवर्ट भी कर सकते हैं, सेल्फ चेक एक्सरसाइजेस आप वहां भी दे सकते हैं समरी के पहले, और लास्ट में सेल्फ एक्टिविटी आप अलग से भी दे सकते हैं, और वाइस वर्सा। इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द क्वेश्चन व्हाट यू आर आस्किंग। अब यहाँ पे ये इसमें थोड़ा सा सीक्वेंस में देयर इज ए चेंज। सेल्फ एक्टिविटीज इफ दे आर टेकन एट द लास्ट, अब सेल्फ एक्टिविटीज में क्या है, यू गिव समथिंग न्यू टू हिम, लेट हिम आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लोर। सेल्फ चेक एक्सरसाइजेस क्या है, सेल्फ चेक एक्सरसाइजेस बेसिकली कहाँ आना चाहिए, जब आपने कंटेंट पढ़ लिया, कंटेंट के जस्ट बाद सेल्फ चेक एक्सरसाइजेस आप किया जानी चाहिए। लेकिन सेल्फ एक्टिविटीज का मतलब है कि द लर्नर हैज टू इन्वॉल्व oneself in something which is not in this content. He has to go out, observe and interact with himself, interact with the surroundings and then answer. तो अगर कोई लर्नर इंटरेस्टेड होगा तो निश्चित रूप से उस कार्य को वो पूरा करेगा। तो ये सीक्वेंस हमको जैसे सेल्फ चेक एक्सरसाइज पहले कर ले, देन समरी, देन सेल्फ एक्टिविटीज, देन सजेस्टेड रीडिंग्स। आप देखते हैं कि
आमतौर पे करिकुलम के एंड में भी या सिलेबस के एंड में भी ये दिया जाता है कि सजेस्टेड रीडिंग्स क्या हैं। हर लेसन के एंड में भी आप दे सकते हैं, या आप चाहें तो पूरे मॉड्यूल्स के लास्ट में भी आप दे सकते हैं। जैसे एक मॉड्यूल आपने बताया तो उस मॉड्यूल के एंड में भी डिफरेंट लेसन एंड्स में भी दे सकते हैं, या फिर मॉड्यूल के एंड में भी सजेस्टेड रीडिंग्स दे सकते हैं। लेकिन इसमें एक बात ये खास तौर पे ध्यान रखने की है, इट शुड इंक्लूड ऑथेंटिक इन-टेक्स्ट रेफरेंसेस। जैसे अंदर जिन ऑथर्स के नाम या राइटर्स के नाम आपने रिफ्लेक्ट किए होंगे, उनका रेफरेंस हमको जरूर सजेस्टेड रीडिंग्स में ऐड कर देना चाहिए। दिस शुड बी टेकन केयर। तो इन जनरल जो कंटेंट डेवलप करना होता है, जो ई राइटिंग कंटेंट का आप करते हैं, उसमें आपको ये ध्यान रखना पड़ता है। These are general points, basic points which are to be taken care. How to act? जैसे this is a sort of theory, but how to act? How to proceed? जैसे सोच तो हर आदमी सकता है, सोचने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन उस सोच को वास्तव में हम उसको अमली जामा कैसे करना, how to realize it, how to achieve it, that is a bit tough task. लेकिन आप ये देखिए कि हर आदमी अपने अपने ढंग से व्यस्त है। हम अगर एक हैबिट डेवलप करें कि one must learn to initiate and one must learn to create teams. आमतौर पे होता क्या है कि one wants to initiate, but one wants that others should work for him, but one is not able to give due credit to the team members. ये तीनों चीजें हर आदमी को कोशिश करनी चाहिए कि अपने पर्सनालिटी में इंक्लूड करे। कि जब आप कुछ टारगेट करते हैं तो कुछ लोगों को जोड़ें, कुछ लोगों को जोड़ें, उनको इन्वॉल्व करें और उनको ड्यू क्रेडिट दें। You should give due credit to yourself and due credit to others at the same time. If you are not doing it, you will not proceed longer. You will not proceed faster. तो आप ये देखें कि ये सब काम टीम्स के बिना करना मुश्किल होता है। It is not an individual exercise. तो इसलिए develop a team of experts. जैसे मान लीजिए कि आपके यहाँ 3 लोग हैं, 2 are interested, you include 2, and if third is also interested, you look for to what extent he or she is interested. You can include all 3, है ना? ये जरूरी नहीं कि हर आदमी बराबर कंट्रीब्यूट करेगा, ये ध्यान रखिएगा। But you will find that out of the 3 people, some area of expertise is with the third. That expertise can be used by you. So you have to develop a team of experts, but not necessary. अगर तीसरा या चौथा ऐड नहीं होना चाहता है, इसका मतलब ये नहीं कि आप काम शुरू मत करिए। You should take an initiative and you should take help of those people who know that they are good in the field, but you are not having any rapport with them. तो ऐसे लोगों से आप टच भी कर सकते हैं, या हो सकता है आपके इंस्टीट्यूशन के बाहर के लोग हों, तो इंस्टीट्यूशन के बाहर के लोग हों, कुछ सीनियर्स हों, तो उनको भी एज एंड व्हेन दे आर अवेलेबल यू कैन अप्रोच देम। बट यू शुड हैव अ टीम ऑफ एक्सपर्ट्स बिकॉज यू आल्सो वांट टू वैलिडेट योर कंटेंट। सो विद वैरायटी लाइक कंटेंट एक्सपर्ट, लैंग्वेज एक्सपर्ट शुड बी देयर। जैसे first thing is that content expert should be there, second language expert should also be there, then ICT expert should be there. आप ये देखिए कि बिना ICT incorporation बहुत सारी चीजें they can be done only with the help of a colleague who is expert in ICT. तो आप किसी ICT expert को भी आप उसमें include कर सकते हैं। Then young professionals and facilitators, जैसे किसी भी काम को आप अच्छे ढंग से करना चाहते हैं, इसको शामिल करिए। ज्यादा एजेड आदमी होता है, सुधार के बाद बहुत बताएगा। मैदान में क्रियान्वित करने के लिए कौन चाहिए?
यंगस्टर्स चाहिए, बिकॉज दे आर फास्ट, एनर्जेटिक। ठीक है ना, कभी कभी वाइसी वर्सा भी होता है, ठीक है। तो लेकिन आप ये ध्यान रखें कि यू शुड इन्वॉल्व यंग प्रोफेशनल्स, क्योंकि हमारा पर्पस एक ये भी है कि हम अपनी यंग प्रोफेशनल जनरेशन को भी तो तैयार करना चाहते हैं। तो यंग प्रोफेशनल्स एंड फैसिलिटेटर्स ये अलग से लिखा है। फैसिलिटेटर्स मींस maybe there is a junior colleague, there is a student who is known to you and is very good, and he can do something extra, so why you cannot involve him, है ना? So there are people who, there is some person in the office who is well at some other post, but he is aware of certain things, he is qualified and he can facilitate. कहने का मतलब है कि who can help you as and when you want, ये ध्यान रखिएगा, who can help you as and when आपकी एक आवाज पे वो तैयार रहता है पार्टिसिपेट करने के लिए। तो you in this team of experts should have all these things. Then frame rules for the team, जैसे ये देखिए, ये इसलिए जरूरी है कि टीम मेंबर्स को पता होना चाहिए, जैसे कोई काम नहीं कर रहा है, let him go out, उसमें क्लियर कर ले भाई you have to contribute, you will have to give time। ठीक है, सब लोग 3 घंटा दे रहे हैं, तुमको 2 घंटा तो देना ही पड़ेगा, है ना? But it is not there that you are not giving time, still your name is there as expert, it should not be there, it should not be there at all, क्योंकि ये बहुत सारी चीजों को जो है गलत बना देगा। तो आप you frame rules for the team, do's and don'ts, किसको क्या करना है, जो जिस एरिया का एक्सपर्ट है उसको उस मोड में आप इन्वॉल्व करिए। एंड ए टाइमलाइन फॉर वर्क कंप्लीशन, देखिए बहुत सारे रूल्स ऐसे भी होते हैं, दे हैव टू बी डिक्लेयर्ड ओपनली, और उन रूल्स को सपोर्ट करने के लिए एक पॉलिसी होती है जो आपके दिमाग में भी चलनी चाहिए, हाउ टू इम्प्लीमेंट दोज रूल्स, तो वो आपके पास होना चाहिए। एंड दिस शुड बी वेरी क्लियर विद यू as a leader of the group, a timeline for work completion, आपको कितने दिनों में इसको पूरा कर लेना है। हम सभी के पास constraints हैं, लेकिन उन constraints में हम किस तरह से गोल को अचीव कर सकते हैं, ये इसका एक हमारे पास टाइमलाइन होना चाहिए, एक टाइम फ्रेम होना चाहिए, और हमको देखना चाहिए कि हम उस टाइम फ्रेम में उस टास्क को अचीव कर पाए हैं कि नहीं कर पाए हैं। So this helps you to act in the right direction. Now, how to execute it? अभी तक तो अभी बाकी चीजें क्या थी, सब आपकी पॉलिसी से रिलेटेड, बट हाउ टू एक्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वर्क इन वर्कशॉप्स टू डेवलप द कंटेंट, देखिए अच्छे इंस्टीट्यूशंस में आप जाएंगे, जैसे रिसर्च इंस्टीट्यूशंस में, आपने एनसीईआरटी का भी नाम सुना है, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। आपने देखा कि एक लंबे दौर तक एनसीईआरटी ने बहुत अच्छी फीडिंग की, जो बेस्ट मटेरियल डेवलप्ड है वो एनसीईआरटी द्वारा डेवलप्ड, लेकिन एनसीईआरटी में काम कैसे होता है, इट इज विद द हेल्प ऑफ टीम ऑफ एक्सपर्ट्स। एनसीईआरटी में बैठा आदमी खुद कुछ काम नहीं करता है, वो इसके पहले वाले सारे काम करता है, लेकिन वर्किंग कैसे होती है, देश के विभिन्न कोनों से परिचित अध्यापक या जो एक्सपर्ट्स होते हैं या प्रैक्टिशनर्स होते हैं, उनको लोग ले आते हैं। तो ऐसे ही हम भी ये कर सकते हैं कि 1 2 3 4 वर्कशॉप्स कर सकते हैं, और उन वर्कशॉप्स में हम आउटपुट बेस्ड वर्कशॉप करते हैं। जैसे वर्कशॉप में ये नहीं कि 2 दिन इकट्ठा हुए तो हमारे पास कुछ आएगा नहीं, 2 दिन में हमारे पास कुछ आ जाएगा, और अगली वर्कशॉप के लिए एक पर्टिकुलर फ्रेम बना के क्लियरिफाई हो जाएगा कि इन द नेक्स्ट वर्कशॉप दिस हैज टू बी कंप्लीटेड, यू ब्रिंग, यू विल डिस्कस एंड विल फाइनलाइज, ठीक है ना? तो ये वर्क इन वर्कशॉप्स टू डेवलप द कंटेंट, तो वो कंटेंट आपके पास रेडिली टाइम फ्रेम के हिसाब से वर्कशॉप कर लीजिए, और वर्कशॉप्स को टारगेट बेस्ड बना लीजिए, किस टीचिंग पॉइंट को किस में कवर करना है, किन लोगों के द्वारा कवर करना है। तो
टास्क एनालिसिस में ये भी होता है, यू ऑल्सो एनालाइज विच टास्क आर टू बी कंप्लीटेड बाय विच एक्सपर्ट्स, ये भी आप तय कर लें। और ये जो प्रिंसिपल राइटर है ये उसका काम होता है। सो यू वर्क इन वर्कशॉप्स टू डेवलप द कंटेंट, देन टेस्ट द डेवलप्ड कंटेंट यूटिलिटी विद रियल यूजर्स। वर्कशॉप्स में आपने कंटेंट तो डेवलप कर लिया, लेकिन जिनके लिए वो बना है, अगर मान लीजिए क्लास 8 के लिए बना है, 9th के लिए बना है, या अंडर ग्रेजुएट्स के लिए बना है, या पोस्ट ग्रेजुएट्स के लिए बना है, जिसके लिए भी बना है वो एक बार उनको पढ़ने को दीजिए। इट में बी योर फर्स्ट ड्राफ्ट, और उनको पढ़ने के क्रम में, यूज करने के क्रम में आपको उनको इन्वॉल्व कहीं करना पड़ेगा। जैसे आप किसी को दे देंगे भाई इसको पढ़ के बता दो, तो नहीं बताएगा, उसको भी उसी वर्किंग वर्कशॉप मोड में इन्वॉल्व करना पड़ेगा। जैसे आपने 5, 7, 10 के ग्रुप्स को आइडेंटिफाई कर लिया, उनको आपने, या 20 के ग्रुप को आइडेंटिफाई किया, और जो मटेरियल डेवलप है उनको आपने शेयर कर लिया। यू कैन शेयर इन हार्ड एंड सॉफ्ट व्हाटएवर इज फिजिबल। बिगिनिंग फेजेस में ये बेटर है कि हम उनको हार्ड में ही शेयर करें। क्यों? क्योंकि ये भी कई बार होता है कि somebody may pass on that content to somebody else। तो बिगिनिंग फेज में जो फर्स्ट फेज आप कर रहे हैं उसमें आप हार्ड कॉपी ही 8 या 10 लोगों को आप इन्वॉल्व करते हुए और उनसे रीडिंग्स कराएं, उसको देखें कि उनको कॉम्प्रिहेंसिबिलिटी है कि नहीं, प्रॉब्लम्स और हैं तो वो भी आप चेक करें। कहने का मतलब है कि यू लुक वेदर इट इज यूजफुल और नॉट, and then upgrade the developed content with the help of obtained feedback in follow-up workshops। Then again sitting of experts has to be ensured, और follow-up workshops में आपको फिर उन चीजों को accommodate करके और उसको आपको फिर modify करना पड़ता है। तो इस तरह से आपको at least 2 or 3 times आपको इस काम को करना पड़ता है। You may have to do it at least 3 times, क्योंकि थर्ड ड्राफ्ट में फिर फर्दर मॉडिफिकेशंस आपकी अपनी रीडिंग्स के हिसाब से भी आ सकती हैं। एंड देन रीचेक एंड वैलिडेट द फाइनल फॉर्म फॉर्म्स। तब जो है फाइनल फॉर्म जो है आप फिर एक बार करने के बाद किसी ग्रुप को दे करके और फिर क्रॉस वैलिडेशन कर सकते हैं। अब इनकी डिजाइन में आप बहुत सारी चीजें जो भी आप बेहतर समझते हो उनको इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। Now how to publish? जैसे जो आपने काम कर लिया वो पब्लिक यूज के लिए भी आना चाहिए, आपके भी प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए आना चाहिए, और उसके लिए जो है पब्लिकेशंस का होना जरूरी है। तो पब्लिकेशंस के लिए कुछ ये चीजें हैं जो कि विशेष तौर पे हमको ध्यान में देना चाहिए। एक तो लीगल डिफेंस के लिए, दूसरा है कि अपने प्रोफेशनल ग्रूमिंग के लिए भी ध्यान में रखना चाहिए। पहले तो ये प्लेगरिज्म चेक कर लेना चाहिए। आप ने देखा होगा कि आजकल बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल, उन सॉफ्टवेयर जैसे कि ड्रिलब्रिट है या ट्रिनिटीन है, या इवन अगर छोटे कंटेंट्स हैं किसी के तो उसके लिए छोटे छोटे नेट पे भी अवेलेबल हैं कि छोटे छोटे मोड्स में आप कर सकते हैं। लेकिन इंस्टीट्यूशनल लेवल पे ये ड्रिलब्रिट या ट्रिनिटीन इनका यूज आप कर सकते हैं। डिफरेंट यूनिवर्सिटीज जो है खास तौर पे इन दोनों का ही यूज करती हैं, या ऑथेंटिकेट का भी ये यूज करते हैं। तो उनको आप यूज करके और फिर परसेंटेज में यू फॉलो द नॉर्म्स फॉर पब्लिकेशन। जैसे कोई भी मटेरियल है, इट शुड नॉट बी हैविंग मोर देन 10% सिमिलरिटी। तो वो 10% की लिमिट आप ध्यान रखें। लेकिन ये हो सकता है अगर आपने फर्स्ट टाइम चेक किया कहीं एंड इफ इट इज कमिंग 30%, ऐसा हो सकता है। तो आपको क्या करना है, फिर उसको आपको देखना है कि हाउ टू मॉडिफाई। मॉडिफिकेशन के प्रोसेस में जाएं, उसमें देखें कि आप लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, फ्रेजेस चेंज कर सकते हैं, कुछ चीजें बहुत ओवर लॉन्ग सेंटेंसेस जहां कहीं से आपने लिया हो उनको आप हटा सकते हैं। तो you can reframe based on that also, but finally you in the final validation you have to see that it should not exceed 10%, ठीक है। Then may take ISBN।
आप जानते हैं किसी भी बुक को ISBN सीरियल के साथ पब्लिश करना होता है, तो मे टेक ISBN एंड सेल्फ पब्लिश। जैसे ये फैसिलिटी ISBN पोर्टल पे होती है कि यू कैन आल्सो बी ए सेल्फ पब्लिशर। सेल्फ पब्लिशर मतलब आप अगर किसी चीज को ओन करते हैं और आप चाहते हैं कि कोई चीज आप जानते हैं और उसको डिसेमिनेट करें, ऑथेंटिक भी है, तो उसको आप ओपन एक्सेस पे डाल सकते हैं। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका है पब्लिश विद द हेल्प ऑफ इंस्टीट्यूशन और पब्लिशर्स। अगर आपकी संस्था मान लीजिए कि उसके लिए ओन करना चाहती है तो उसके हेल्प से भी पब्लिश आप कर सकते हैं। अब इसमें जब टीम ऑफ एक्सपर्ट्स वाला जो हमने बताया था, उसमें आपको ये भी ध्यान में रखना है कि ये पब्लिकेशन के समय आपको उसको प्रॉपर फॉर्म में कंपोज करने का भी चैलेंज होगा। एक बुक फॉर्म में उसको ई कंटेंट को ले जाने का भी चैलेंज होगा। तो यहाँ पे ये देखना है कि हम ये भी देखें कि इंस्टीट्यूशन किसी को हमको प्रोवाइड कर रहा है क्या, कि जो उसको बना दे और हमारे टाइम फ्रेम में करके वो दे दे, ठीक है ना। अदरवाइज एज ए टीम यू कैन हायर समबडी फ्रॉम आउटसाइड एंड गेट इट डन, बट दैट पर्सन शुड बी रिलायबल सो दैट इट इज नॉट डिसेमिनेटेड एंड गिवन टू अदर्स। तो ये कुछ बेसिक प्रोसीजर्स हैं जो कि किसी भी सेल्फ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल के लिए होती हैं। बाकी बहुत सारी चीजें और भी हैं जो कि AI के यूज के लिए या इवन इन सब चीजों के यूज के लिए भी हैं। वो मेरे ख्याल से डिफरेंट स्टेशंस में आपने जाना होगा, नहीं एक आपने वो बचा हुआ तो जाना। इन सम एग्जांपल जैसे हम लोगों ने अभी फास्ट एफर्ट किया था टीचिंग स्किल्स पे, जैसे टीचिंग स्किल्स फॉर प्रोफेशनल्स इन हायर एजुकेशन, एक हम लोगों ने अपने लेवल से एक टीम के हेल्प से क्रिएट किया था और उसको जो है ISBN लेकर के वेबसाइट पे चेक करके डाला है। मे बी दैट इज ऑफ सम यूज, you can also improve the literature you have produced in the subsequent efforts with some different names. So you should not hesitate to start. जैसे ये होता है कि हाँ अभी देखेंगे, अभी तो बाद में कर लेंगे, लेकिन कोई भी समय ऐसा नहीं होता है कि उचित या अनुचित समय होता है। You can take initiatives and you can create teams and you can start. ठीक है ना। तो आप ये देखना चाहें इसको भी देख सकते हैं, या बहुत सारे स्कूल्स के भी इस तरह के मटेरियल्स बने हुए हैं उनको भी देख सकते हैं। बट दिस इज ए सिंपल मटेरियल व्हिच हैज बीन डेवलप्ड फॉर यूज ऑफ टीचर्स इन हायर एजुकेशन। वो जैसे टीचिंग स्किल्स फॉर प्रोफेशनल्स इन हायर एजुकेशन के लिए है, और हिंदी में भी वही मॉड्यूल हम लोगों ने फिर ट्रांसलेट करने की कोशिश की है, जिसको कि उच्च शिक्षा के अध्यापकों के लिए शिक्षण कौशल। और सिमिलरली व्हाट आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ टीचिंग इन साइंस, मैथ, लैंग्वेजेस एंड ह्यूमैनिटीज फॉर टीचर्स इन हायर एजुकेशन। तो उसको हम लोगों ने हिंदी इंग्लिश में करके डेवलप किया हुआ था। तो इसके अलावा जैसे कि इग्नू के भी मटेरियल्स आप देख सकते हैं। इग्नू के जो ट्रेडिशनल मटेरियल्स हैं वो भी सेल्फ इंस्ट्रक्शनल मोड में बने हुए अच्छे मटेरियल्स हैं। बाकी यूनिवर्सिटीज में भी बने हुए हैं डिस्टेंस मोड यूनिवर्सिटीज में, लेकिन वो उतने अच्छे नहीं बने हुए हैं, उतने ऑथेंटिक नहीं है। So this is in brief about this topic. If there are any type of queries, you can please ask. आप सभी लोग हायर एजुकेशन के हैं, पर्टिकुलरली रेफरेंसिंग जो है वो किसी भी ऑथेंटिक राइटिंग के लिए सभी को आनी चाहिए। रेफरेंसिंग से तात्पर्य क्या है? जैसे हम अगर ये कहते हैं मेन टेक्स्ट में या इन टेक्स्ट में, जैसे लेसन राइटिंग का जो मैंने बताया उसमें लिखा है कि एज सेड बाय एरिस्टोटल, ठीक है ना। अब हमने लिख तो दिया कि एज सेड बाय एरिस्टोटल, लेकिन एरिस्टोटल ने कब कहा, एरिस्टोटल ने कहां कहा, फ्रॉम वेयर आई हैव फाउंड इट, ये जो रीडर है उसको भी तो पता होना चाहिए। तो पहली चीज तो है इन टेक्स्ट जो राइटिंग हम करते हैं वहां पे अगर एरिस्टोटल लिखा है तो वी शुड सपोर्ट इट विद द ईयर। और इसके लिए आमतौर पे जो अभी ज्यादा प्रचलन में है
वो APA स्टाइल ऑफ राइटिंग है, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, क्योंकि भारत वालों का दिमाग अभी इतना तेज नहीं चल रहा है, दे आर मोर फोकस्ड ऑन इमिटेटिव राइटिंग्स, so we have not been able to develop several things professionally, so international norms they are going like that, APA norms को ज्यादा कोट करते हैं, जिसमें आप ये देखेंगे कि जैसे आपने लिखा एरिस्टोटल, then it will be in bracket year, all right, so in reference given at the end it should include somewhere Aristotle year, unless it is given there, means some authentic original writing of Aristotle has been read by me, and if I am reading it from some secondary or tertiary source, then I should quote that source. जैसे उसमें हम ये कर सकते हैं कि as written by Singh 2025 and as quoted by Singh, Aristotle has said. So it will be secondary or tertiary source. Then you will quote Singh. Then you will not quote Aristotle. But while writing Singh, you should also see that that particular person has referred Aristotle from somewhere or not. In general, such writings or books should be avoided where proper references are not given. ठीक है ना? उनको हम ऑथेंटिक नहीं कहते। In text and end text का मतलब यहाँ पे यही है कि whatever names and years you are writing inside the text, they should come at the end also. अगर मान लीजिए हमको लगता है कि बहुत अच्छी कोई चीज है और हमको मिलेगी, लेकिन उसका अगर रेफरेंस नहीं है, तो इट इज बेटर टू रिमूव दैट पार्ट, है ना, वो ज्यादा सेफ है हमारे लिए। जी Sir, in academic writings we also go for the cross referencing. So suppose one paragraph is there and we have taken some reference. So we write in the superscript 1, 2, 3. So that will be more beneficial if we can directly to the name from there. That can be done, obviously. Very right, that can be done. You can give links if you are taking from somewhere, and then links should be given over there. That is a brilliant idea. बहुत सारे उसमें आपको मिलता है कि वहाँ पे immediately main जो text है वहीं पे आपको link दे दिया रहता है, and if you want to go you can go to that. लेकिन उस तरह की राइटिंग्स में आपको और एडिशनल एफर्ट थोड़ा करने पड़ते हैं, और उसके लिए जो है कि आपको थोड़ा सा आईसीटी एक्सपर्टाइज और बेहतर होनी, हाँ उसमें जाना पड़ेगा ना, क्योंकि बहुत सारे लिंक्स ऐसे भी ना है कि दे आर नॉट वेरी ऑथेंटिक, वो ठीक भी नहीं है, तो वो भी आपको इंश्योर करना पड़ेगा, लेकिन वो दे सकते हैं, दैट इज ए वेरी गुड वे। और जो आप देखते हैं गूगल पे बहुत सारा मटेरियल है, विकिपीडिया पे जो मटेरियल है उसमें वो दिया रहता है उस तरह का, बट ऑथेंटिसिटी इज क्वेश्चनेबल समटाइम्स, वो लिंक तो रहता है लेकिन वो फिर कहां से लिया है, दैट इज क्वेश्चनेबल। बहुत सारे फिगर्स के लिए हम ऐसा कर सकते हैं, जो डायग्राम्स या फिगर्स हम यूज करते हैं आमतौर पर दिया रहता है इस तरह से। Sir, one question, as you stated that we can take IGNOU material, but on the website links are there, but material are not there. How can we plot it out? देखिए उसमें जैसे कि जब मार्केटाइज आप So करते that हैं, we need to be registered there. हाँ, जब मार्केटाइज आप करते हैं, इसलिए कहा ना कि मार्केटाइज जब आप करते हैं तो फ्री में तो सब कुछ मिलता नहीं, तो जो स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड हैं या बहुत सारे लोग होंगे जो कि आपके नोन हो सकते हैं, तो उनके थ्रू देख सकते हैं, और नहीं तो अगर कहीं हार्ड कॉपी अवेलेबल हो आपके पास तो उसमें भी देख सकते हैं, क्योंकि वो हार्ड का ही सेम सॉफ्ट रहता है, बट फ्रीली इट इज नॉट एक्सेसिबल। More questions? Sir, one thing. So, for example, if I want to upload some of the content of my institution website, और हमने एक टॉपिक पे बनाया कुछ कंटेंट, और हम
कहीं ना कहीं किसी बुक से हम उसका हेल्प ले रहे हैं, तो क्या हमें उसका भी प्लेगरिज्म और सारी चीजें वो चेक करनी पड़ेगी? करनी ही चाहिए, करनी ही चाहिए। जैसे कोई भी व्यक्ति आपको चैलेंज कर सकता है ना, जैसे हम जब भी कोई भी मटेरियल वेबसाइट पे डाल रहे हैं अपनी वेबसाइट पे, तो कोई भी हमको ये कह सकता है कि आप हमारा मटेरियल क्यों डाल रहे हैं, हु आर यू, हैव आई ऑथराइज्ड यू। हाँ, लेकिन यहीं पे एक चीज है, जैसे कि गूगल में जब आप सर्च करते हैं कोई भी मटेरियल, तो सर्च करने के बाद उस पे आपके पास ये इंफॉर्मेशन आ जाती है कि उस पर्टिकुलर लिटरेचर से संबंधित कितना गूगल ने एक मिनट के अंदर या 30 सेकंड के अंदर सर्व करके आपको दिया है। और जब टूल्स पे क्लिक करेंगे आप, तो टूल्स में आपको बता देगा कि टोटल कितना उसने मटेरियल देखा है। वहीं पे कुछ ऑप्शन एक रहता है जहां की आप ये देख सकते हैं कि कौन से उसमें मटेरियल्स ऐसे हैं जो कि ओपन एक्सेस में, जैसे ये ISBN वाला मैंने आपको बताया, तो जो मैंने ISBN लिया है वो ISBN जो है ओपन एक्सेस मोड में दिया हुआ है, एनीबॉडी कैन डू इट ओपन एक्सेस, ठीक है ना। इसी तरह से एक क्रिएटिव कॉमन्स का भी होता है, तो क्रिएटिव कॉमन्स वाली जो चीजें होती हैं वो एनीबॉडी कैन कॉपी यूज द वे एनीबॉडी वांट्स। तो ऐसे जो भी मटेरियल्स जो कि ओपन एक्सेस में है और उसके लिए ऑथर ने कहीं बार नहीं लगा रखा है, वो आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, डिसेमिनेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कोई अगर मार्केटाइज करने वाला है अपने को और सेट इकोनॉमिक पर्पसेस से अगर अपने को कर रहा है और उसके मटेरियल को आपने दिया, तो एट टाइम्स इफ ही इज विजिलेंट ही कैन चैलेंज, है कि नहीं? जब तक संज्ञान में नहीं आता है